شیرگل خان بے قراری سے پہلے سے مخصوص جگہ پر عارف کا منتظر تھا۔ عارف اپنی گاڑی خود چلاتے ہوئے آیا تھا۔ اس نے شیرگل کو دیکھ کر گاڑی نہیں روکی تھی اور وہ بھی معمول کے مطابق اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ ایک مخصوص جگہ عارف نے گاڑی روک کر اس کا بونٹ اٹھایا اور شیرگل اس طرح اس کے نزدیک رکا جیسے مدد کے لیے رکا ہو۔ عارف نے جھکے جھکے چھوٹی سی کیسٹ نکال کر اسے تھما دی اور بونٹ بند کر کے اپنی راہ لی۔ اگلے روز بابا صاحب نے صبح سے پہلے جبار بھائی کو اپنے پاس طلب کیا۔ وہاں پہلے سے منسٹر صاحب اور 2-3 کاؤنسلر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے چھٹتے ہی کہا، پنڈی کا معاملہ بہت الجھ گیا ہے، تم لوگ ابھی روانہ ہو جاؤ اور جس طرح بھی ممکن ہے دونوں گروپوں کی صلح کروا دو۔ میں حکومت کے سامنے اب مزید تماشا نہیں بننا چاہتا۔ جبار بھائی نے احترام سے جواب دیا، جو حکم بابا صاحب۔ بابا صاحب نے انہیں کچھ ہدایات دی اور چاروں پنڈی کے لیے چل دیے، جہاں واقعی گزشتہ 15-20 روز سے تنظیم کے 2 گروپوں کے درمیان ٹھن گئی تھی اور انہوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ بھی شروع کر دی تھی۔ انہیں اپنے مشن پر روانہ ہوئے بمشکل 1 گھنٹہ ہوا تھا جب منسٹر صاحب کو بابا صاحب سے فوری ملاقات کا پیغام ملا۔ چونکہ آج کل ان کی بابا صاحب سے گاڑھی چھنتی تھی اور بابا صاحب اکثر معاملات میں ان سے مشاورت کرتے تھے، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی۔ منسٹر صاحب بابا صاحب کے آستانے پر پہنچ گئے۔ دونوں کے درمیان قریباً 1 گھنٹہ میٹنگ چلتی رہی، جب ان کی سیکرٹری نے اطلاع دی کہ چیف منسٹر صاحب شرف باریابی چاہتے ہیں۔ بابا صاحب نے لاپرواہی سے کہا، شام کا وقت دے دو۔ انہوں نے منسٹر صاحب سے آج بہت اہم باتیں کی تھی، جس کے بعد انہیں فارغ کر دیا گیا تھا۔ بابا صاحب کی عادت تھی کہ اپنے خاص مہمانوں کو جنہیں عزت دینا مطلوب ہوتا، بابا صاحب اپنے کمرے کے باہر برآمدے تک رخصت کرنے آتے تھے۔ برآمدے سے قریباً 40 گز تک مہمان کو پیدل سفر کر کے اپنی کار تک جانا ہوتا تھا۔ بابا صاحب نے منسٹر صاحب کو گرم جوشی سے رخصت کیا اور جیسے ہی واپس مڑے اچانک لڑکھڑا کر گر پڑے۔ ایک کونے میں کھڑے ایک باڈی گارڈ نے اچانک گولیوں کی بارش شروع کر دی تھی۔ منسٹر صاحب کے جسم میں یکے بعد دیگرے 8-10 گولیاں جا گھسی۔ اس بیچارے کو تو منہ سے آواز نکالنے کی بھی مہلت نصیب نہ ہوئی۔ اچانک ہی کسی نے چیخ کر بتایا، بابا صاحب زخمی ہیں۔ چاروں طرف کوہرام مچ گیا۔ درجنوں محافظ اس طرف دوڑتے چلے آئے، جنہوں نے بابا صاحب کے گرد حصار باندھ لیا اور انہیں اٹھا کر اندر لے گئے۔ جس باڈی گارڈ نے فائرنگ شروع کی تھی، اس نے منصوبے کے مطابق ایک طرف دوڑ لگا دی، لیکن اس بیچارے کو چند قدم ہی بھاگنے کی مہلت نصیب ہوئی اور اس کے جسم پر گولیاں اولوں کی طرح برس رہی تھیں۔ مرتے دم اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی، کیونکہ اس بیچارے کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ اسے بھی اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اس نے تو حکم کی پابندی کی تھی اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ خود اسے علم نہیں تھا کہ وہ تو قربانی کا بکرا بن رہا ہے۔ بابا صاحب کو ان کے محافظ ہسپتال لے جا رہے تھے۔ سارے شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ بابا صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، جس میں منسٹر صاحب مارے گئے ہیں اور بابا صاحب زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن سیکیورٹی ایجنسیاں پہلے سے کسی بھی طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوشیار تھیں، اس لیے شہر نگارہ میں خون خرابہ تو ہوا، لیکن معمول سے بہت کم۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر حساس علاقوں میں کرفیو نافذ کرنے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں نے پوزیشنیں سنبھال لیں۔ ہسپتال کے باہر بابا صاحب کے عقیدت مندوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ لوگ ہسپتال کی دیواروں سے سر ٹکرا رہے تھے کہ کسی بھی طرح انہیں بابا صاحب کی ایک جھلک دیکھنے دی جائے، لیکن بابا صاحب کے خصوصی گارڈز نے کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ہسپتال کی انتظامیہ کی طرف سے لوگوں سے بار بار اپیل کی جا رہی تھی کہ وہ بابا صاحب کو آرام کرنے دیں۔ فی الوقت ان کو ڈسٹرب کرنا ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بابا صاحب ہسپتال میں فروکش تھے جب یہ افسوسناک خبریں انہیں مل گئیں، جس کے مطابق جبار بھائی، جو ان کے حکم پر تنظیم کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے پنڈی گئے تھے، ان پر پنڈی پہنچتے ہی قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں جبار بھائی بھی جاں بحق ہو گئے۔ واقعات کے مطابق جبار بھائی جب تنظیم کے مرکزی دفتر میں اپنے ساتھیوں سے ملاقات کے بعد واپس آ رہے تھے تو وہاں گھات لگائے ایک شخص نے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ درجنوں گولیاں ان پر فائر ہوئیں اور حملہ آور بچ نکلنے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ یہ حملہ بالکل اسی انداز کا تھا جس طرح یہاں منسٹر صاحب پر کیا گیا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ منسٹر صاحب پر حملہ کرنے والے کو موقع پر مار دیا گیا تھا، جبکہ جبار بھائی پر حملہ کرنے والا بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تنظیم کے مقامی دفتر نے اس حملے کی ذمہ داری حسب روایت مخالف تنظیم پر عائد کر کے اس کے خلاف دھواں دھار بیانات اخبارات کے لیے جاری کر دیے تھے۔ جیسے ہی اس حادثے کی خبر شہر میں پھیلی، چاروں طرف بے چینی پھیل گئی۔
जज्बात भड़के और इश्तियाल अंगेज नारों ने हुजूम की शक्ल इख्तियार कर ली। देखते ही देखते ज़बान, नस्ल, कौमियत के भयानक शिकंजे में जकड़े मासूम और वरगलाए इंसानों के अंबोहे कसीर के एहतजाज ने तकरीबकारी शुरू कर दी। उनकी सफ़ों में घुसे रौ के तकरीबकारों ने उनकी रहनुमाई करते हुए उन्हें सरकारी दफातर, मुखालिफ तंजीम के ओहदेदारान के घरों और पुलिस चौकियों पर हमले का रास्ता दिखाया। पल भर में शहर का अमन तहबाला करके रख दिया। खौफजदा लोग चीखते चिल्लाते बेबसी से तकरीबकारों की गोलियों की भेंट चढ़ रहे थे। हंगामा आराई की आड़ में तंजीम वालों ने चुन चुन कर मुखालिफ तंजीम के ओहदेदारों के खून से होली खेली। उनके घर फूंक दिए गए। घरों को जलाते हुए बतौर खास इस बात का एहतमाम किया गया कि वहां से कोई मुकीम इस जुल्म की दास्तान सुनाने को जिंदा न निकल सके। शाम तक अमन व अमान की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि इंतजामिया को बादल नखास्ता कर्फ्यू लगाना पड़ा और कई जगह हवाई फायरिंग करके जुलूस मुंतशिर करने पड़े। बाबा साहब ने अस्पताल के आरामदेह कमरे में, जहां वो एक कामयाब ड्रामे का ड्रॉप सीन करने के बाद अपनी टांग पर पट्टियां बांधे आराम कर रहे थे, ये खबर सुनी तो उनकी आंखों की वहशियाना चमक दो चंद हो गई। मर गया साला कुत्ते का पिल्ला, हमारी बिल्ली और हमी को म्याऊं। बहुत चालाक समझता था खुद को। अरे ऐसे तो दर्जनों मैंने चुटकी से मसल डाले, और वो मिनिस्टर का बच्चा, वो गंदी नाली का कीड़ा जिसे मैंने जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया, वो तो अपनी औकात ही भूल गया था, मुझे मारने चला था। बनाता हूँ तुम्हें तंजीम का चेयरमैन, साले लीडर बनते हैं। उसके मुंह से मुखल्लजात का तूफान बरामद हुआ। कमरे में उसकी चारपाई से लगे बाबा साहब के खुसूसी दरिंदे बड़े खुशो खुजू से उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे और बढ़ चढ़कर बाबा साहब को एक ही झटके से 2 शिकार मार गिराने पर दादो तहसीन के डोंगरे बरसा रहे थे। नसीर भाई ने चमचागिरी में जबान हिलाई। बाबा साहब, सियासत तो आपके घर की बांधी है, ये साले कल के लौंडे क्या जाने। अरे क्या खबर के सरकार से कैसे निपटा जाता है, हुकूमत कैसे की जाती है। आरिफ ने, जिसके जिस्म से हसास टेप रिकॉर्डर लटका था, बाबा साहब के मुंह से इकरार जुर्म रिकॉर्ड करवाने के लिए फिलर छोड़ा। वाह बाबा साहब, कमाल कर दिया आपने। एक ही हल्ले में दोनों का सफाया करवा दिया। बाबा साहब बोला, आरिफ अभी तुमने देखा ही क्या है, मैं तो गद्दारों को जमीन की 7वीं तह से निकाल कर जिंदा दरगोर कर दिया करता हूँ। चाहिए तो ये था कि उन दोनों की खालों में भुस भरवाकर उन्हें चौराहे में लटका देता, लेकिन बेचारों के जिस्मों में इतने ज्यादा सुराख हो गए थे कि ऐसा करना मुमकिन ही नहीं रहा। बाबा साहब ने भयानक कई कहा बुलंद किया। नसीर भाई ने नारा लगाया, आप अजीम हैं बाबा साहब, और वहाँ मौजूद तमाम भेड़िए उनके हमजबान हो गए। अस्पताल के एक बड़े कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। अखबार नवीस वहां जमा हो चुके थे और अब बाबा साहब की आमद के मुंतजिर थे, जिन्होंने कमाल मेहरबानी से इतनी जख्मी हालत में भी उनके साथ गुफ्तगू का एहतमाम फरमाया था। सब आ गए क्या? बाबा साहब ने, जिनके पांव पर गोली लगी थी लेकिन जो अपने कदमों पर खड़े कमरे में बेचैनी से चक्कर काट रहे थे, अपने खुसूसी भेड़ियों से दरियाफ्त किया। रुखसाना ने जवाब दिया, जी बाबा साहब, आपके मुंतजिर हैं। रुखसाना ने आज बाबा साहब के हुक्म पर मेकअप से इज्तिनाब किया था और बादल नखास्ता सुर्खी पाउडर के बगैर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना करने जा रही थी। बाबा साहब ने अचानक बेख्याली में दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, चलो। नसीर भाई बोला, इधर बाबा साहब। उसने अचानक उन्हें याद दिलाया कि उनके तो पांव में गोली लगी है और वो तो चलने फिरने से माजूर हैं। उन्होंने माजूरों वाली कुर्सी पहले से ही वहां मंगवा रखी थी। आरिफ मियां हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि बाबा साहब के जिस्म पर तो खराश तक नहीं आई थी और उन्होंने पांव में गोली लगने का ड्रामा भी अपने पैरोकारों और हुकूमत की आंखों में धूल झोंकने के लिए रचाया था। आरिफ मियां को याद आ गया कि जिस सरकारी अस्पताल में बाबा साहब जेरे इलाज हैं, वो दरअसल तंजीम का ही एक कला है। उस अस्पताल के चपड़ासी से डॉक्टर तक सब बाबा साहब के खास मुरीद थे। उस अस्पताल में बावर्ची की तैनाती भी उनकी इजाजत के बगैर नहीं होती थी। उसे इल्म था कि इस अस्पताल के बगैर कमरे दरअसल तंजीम का असलहा खाना है, जहां बड़े खतरनाक हथियार छुपाए गए हैं। किसकी जरूरत थी कि वो इस ड्रामे में हकीकत का रंग भरते हुए कमजोरी का मुजाहरा करते। वहां के हर मुलाजिम को एहसास था कि वो नौकर तो सरकार का है, लेकिन हुक्म उसे बाबा साहब का मानना होगा। बसूरत दीगर नौकरी से छुट्टी ही नहीं बल्कि भयानक सजा भी उसका मुकद्दर बन जाएगी। थोड़ी देर के बाद मरीजों की कुर्सी पर हुस्न यास की तस्वीर बना इस सदी का सबसे भयानक अदाकार अखबार नवीसों के सामने मौजूद था। उसने बोलना शुरू किया, हमें इस बात पर फख्र है कि हमारे पास कुर्बानियों की एक लाजवाल तहरीक मौजूद है। हमारे आबा और अजदाद ने इस कौम के कयाम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए और हमारी नस्ल इस मुल्क की बका के लिए अपना खून बहा रही है। अगर हमारे दुश्मन ये समझते हैं कि वो हमारे साथियों को शहीद करके हमारा रास्ता रोक लेंगे तो ये उनकी भूल है। हमारे दुश्मनों की गोलियां खत्म हो जाएंगी,
लेकिन हमारे सीने और उनमें मौजूद अज़ाइम कभी दम नहीं तोड़ सकते। मिनिस्टर साहब और जब्बार भाई की शहादत ने हमारी मंजिल को और करीब कर दिया है। हमारे कारकुनों के हौसले पस्त नहीं हुए बल्कि उनकी शहादत से बुलंद हुए हैं। उन्होंने मरकर हमें जीने की राह दिखाई है। बाबा साहब की आवाज भर्रा गई। अचानक ही उन्होंने अदाकारी का कमाल दिखाया और बच्चों की तरह सिसकियां ले लेकर रोने लगे। नसीर भाई ने रुंधे हुए गले से परेशान अखबार नवीसों के सामने झूठ का तुमार बांधना शुरू किया। मुअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हजरात, परवेज भाई के बाद मिनिस्टर साहब और जब्बार भाई की मौत ने बाबा साहब को बहुत दुखी कर दिया है। डॉक्टरों ने शिद्दत से उन्हें आराम करने का मशवरा दिया है और फौरन किसी यूरोपीय मुल्क जाकर फिल वक्त मौजूदा हालात से किनारा कशी की हिदायत की है। लेकिन बाबा साहब ने हमारी मिन्नत समाजत के बावजूद डॉक्टरों की इस हिदायत पर अमल करने से इनकार कर दिया है और जबरदस्ती आपसे मुलाकात करने भी चले आए हैं। बाबा साहब का फरमान है कि वो इस नाजुक मरहले पर अपने अवाम से एक लम्हे के लिए भी जुदा नहीं हो सकते। हजरात, मुझे अफसोस है, मैं ज्यादा देर तक आपसे बात नहीं कर सकता। मुझे अपने कारकुनों को एक ही पैगाम देना है कि वो मुल्क व कौम की सलामती के लिए इन शहादतों को भी दिलों पर पत्थर रख कर कबूल कर लें और खुदा के लिए उन लोगों को माफ कर दें जिन्होंने इस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब किया है। मेरी अपने भाई बहनों से इल्तिजा है कि वो मुश्तइल होकर कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे मुल्क की सलामती पर हर्फ आता हो। पुरसुकून रहें और तंजीम के तमाम दफातर में शहीदों की रूह को ईसाले सवाब के लिए कुरान पाक खत्म करवाए जाएंगे। अपने शहीद साथियों की मौत पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मुझे अरबाब हुकूमत से सिर्फ यही पूछना है कि क्या वो हमें जुर्म वफा की सजा दे रहे हैं। हम हुकूमत के हलीफ हैं, लेकिन हमारे साथ हरीफों से बदतर सलूक किया जा रहा है। जितनी जल्दी मुमकिन हो कातिलों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूं कि कातिलों की गिरफ्तारी में ताखीर से अवाम का इस्तराब और बढ़ेगा, उनमें बेचैनी पैदा होगी और वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। इतना कहते हुए अचानक बाबा साहब आगे की समत इस तरह झुके जैसे बेहोश होने की तैयारियां कर रहे हों। फिर उन्होंने इस खबासत का अमली मुजाहरा भी कर दिया और देखते ही देखते बेहोश हो गए। उनके अदाकार भेड़िए बाबा साहब के नारे बुलंद करते उनकी कुर्सी घसीट कर उसी कमरे में ले गए। अखबार नवीसों के लिए चाय और लवाजमात का बंदोबस्त मौजूद था। चाय नोशी के दौरान बाबा साहब के चेले अखबार नवीसों के सामने मुसलसल बाबा साहब की अजमत के राग अलापते रहे। चाय इतनी भरपूर थी कि अखबार नवीसों के लिए उनकी बातों को सच माने बगैर कोई चारा ही बाकी नहीं रहा था। आरिफ का दिल आज पहली मर्तबा उसके काबू से बाहर हुआ था। उसका जी चाहता था कि अभी जाए और तमाम मुनाफिकतों और मसलहतों पर लानत भेजकर उस खूंखार दरिंदे का गला घोंट कर मार डाले, लेकिन वो हालात की कठपुतली बना सिवाय इशारों पर नाचने के कुछ करने से माजूर था। वो जानता था कि इस मुल्क के नाआकिबत अंदेश हुक्मरान जिन्होंने अपनी आंखों पर हवसे इक्तिदार की पट्टी बांध रखी है, इस भेड़िए को जिसकी जिंदगी का वाहिद मकसद सिवाय इंसानियत की रगों से कतरा कतरा खून पीने के और कुछ नहीं, अपना सियासी गुरु बना चुके हैं। इस सूबे की 10-12 सीटों के लिए इक्तिदार के पुजारियों की आपस में दौड़ लगी हुई थी और इस कमजोरी से बाबा साहब जैसे मूजी फायदा उठा रहे थे। वो जानते थे कि अगर इक्तिदार पर काबिज ग्रुप ने उनकी किसी भी गैर कानूनी हरकत का नोटिस लिया तो वो उसे धुतकार कर दूसरे की गोद में बैठ सकते हैं, क्योंकि पलड़ा वही भारी होता है जिसमें बाबा साहब अपना वजन डाले। इमराना ने चंद दिनों में ही मीनाक्षी का कुर्ब हासिल कर लिया था और आज मीनाक्षी उसे अपने एक कजन से मिलाने जा रही थी जिसका नाम मीनाक्षी ने उसे सलीम बताया था। रवानगी से पहले उसने आंख दबाते हुए इमराना की तरफ झुकते हुए कहा था, बड़ी मालदार आसामी है, अगर तुमने काबू कर लिया तो सारी जिंदगी ऐश करोगी। जिस तरह के गेस्ट होम में हम रहते हैं ऐसे 10 गेस्ट होम तुम अपने लिए बना सकती हो। इमराना ने भी खालिस कारोबारी अंदाज में अपने माथे पर पड़ी लट झटक कर एक तरफ हटाते हुए जवाब दिया, हाँ चलो देखेंगे। परवीन ने उसके इनकलाबी ख्यालात से मुतासिर होने के बाद उसे बताया था कि वो भी यही अज़ाइम लेकर घर से निकली है और उसने भी इमराना की तरह अपने घर बार और खानदान के झंझटों से निजात हासिल कर ली है। उसने इमराना को रातों रात करोड़पति बनने के भी नुस्खे बता दिए थे और आज इस सिलसिले में वो अपने एक सेठ कजन से उसे मिलाने जा रही थी। दोनों शहर के जिस 5 स्टार होटल में पहले से तयशुदा मुलाकात के लिए जा रहे थे, वहाँ पहले से शेरगुल और उसके साथियों के लिए 3 मेजें रिजर्व थीं। इमराना ने बज़ाहिर बड़ा मॉडर्न और जदीद तराश खराश का लिबास ज़ेबतन किया था, लेकिन परवीन को इस बात का इल्म न हो सका कि उसके ढीले ढाले लिबास में एक छोटा सा निहायत हसास रिकॉर्डिंग सिस्टम भी मौजूद है जो 10 गज दूर से भी मामूली सी आवाज रिकॉर्ड करने की सलाहियत रखता है। उन्हें लेने के लिए एक कीमती कार गेस्ट होम आई थी
उस कार की आमद और उसमें मौजूद ड्राइवर की फिल्म बंदी इंटेलिजेंस के कैमरा यूनिट ने आसानी से इस तरह कर ली थी कि उसे एहसास न हो सका। उन्होंने कार सवार की आमद से बहुत पहले ही अपने लिए महफूज ठिकाना तलाश कर लिया था और कार की आमद से परवीन और इमराना के उसमें सवार होने तक की मुकम्मल तफसीलात सेलुलाइड के फीते पर मुंतकिल हो चुकी थी। गेस्ट होम से होटल तक किसी ने उनका ताक़ुब न किया। होटल में उनके इस्तकबाल के लिए शेरगुल और उसके साथी पहले से ही चश्म बराह थे। कार वापस चली गई और दोनों डाइनिंग हॉल में चली आईं, जहां पहले ही से उनकी टेबल रिजर्व थी, जिस पर एक दरमियानी उम्र का शख्स उनका मुंतजिर था, सलीम। ये कहते हुए उसने अपना हाथ इमराना की तरफ बढ़ाया था, जिसने बेतकल्लुफी से उसका हाथ दबाते हुए उसे अपने नाम से भी आगाह कर दिया था। उसने गुफ्तगू की तमहीद बांधी, बोला, परवीन ने आपकी इतनी तारीफ की है कि मुझे खामखा मुलाकात का शौक चढ़ाया है। वो बोली, जी शुक्रिया, मैं भी परवीन के कहने पर ही आपसे मिलने आई हूँ। इमराना ने बज़ाहिर ऐसा ही तासुर दिया था जैसे उस पर मुलाकात का एहसान जता रही हो। उसने अपनी मेज से तीसरी मेज पर शेरगुल और उसके साथी को बैठे देखकर सुकून का सांस लिया था और अब उसका एतमाद पहले से भी दो चंद हो गया था। सलीम नामी शख्स जो उसके सामने बैठा था शेरगुल खान के लिए अजनबी नहीं था। वो जानता था कि ये सलीम नहीं बल्कि नसीम भाई है, तंजीम के तकरीबकार ग्रुप का मकामी सरगना। तंजीम के तकरीबकार ग्रुप के लोग बहुत कम ही मंजर-ए-आम पर आया करते थे। ये तमाम लोग रॉ के तरबियत याफ्ता और इंतहाई खतरनाक समझे जाते थे। उन्हें भारतीय इंटेलिजेंस की तरफ से बाकायदा हिदायत दी जाती थी और तंजीम की आड़ में दरअसल ये लोग रॉ के आलाकार बनकर मुल्क में दहशतगर्दी की वारदातें करते थे। सलीम के खाना मंगवाने तक इमराना ने उस पर अपनी तरक्की पसंदी का जादू चला लिया। उसने आधे घंटे की गुफ्तगू के बाद बिलाखिर सलीम की तरफ झुकते हुए सरगोशी के अंदाज में कहा, सलीम साहब, मुझे दरअसल देर से इस बात की समझ आई कि इस दुनिया में हर रिश्ते की पहचान दौलत से है, बाकी सब फ्रॉड है और मुझे तो अब बहर सूरत उसी को हासिल करना है। मैंने परवीन को बताया है कि मैं जल्द ही यूरोप का चक्कर लगाने वाली हूँ। एक राब्ता हुआ है और उधर कस्टम में अपनी ठीक ठाक वाकफियत भी है। एक चक्कर में ही सारी जिंदगी की रोटियां इकट्ठी कर लूंगी, बाकी फिर देखा जाएगा। सलीम ने बेहयाई से आंख दबाते हुए कहा, मिस इमराना, आपको इसकी जरूरत पेश नहीं आएगी। अगर आपको ये सब कुछ यहाँ बैठे बैठाए ही मिल जाए तो कैसा रहेगा? इमराना बोली, वेल डन, शानदार, क्या ऐसा मुमकिन है? उसने अपनी दानिश्त में खासी बेकरारी दिखाई। सलीम ने कहा, यह जगह कुछ मुनासिब नहीं लगती, आइए ऊपर बैठकर बात करते हैं। यहाँ हमारे नाम पर एक दो कमरे हमेशा रिजर्व रहते हैं। इमराना बोली, चलिए। और वो इस तरह उठ खड़ी हुई जैसे उस वक्त उसके लिए इससे ज्यादा जरूरी काम और कोई न रहा हो। उसकी इस हरकत पर मीनाक्षी ने अपने साथी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए आंख दबाकर खास इशारा किया था, जिससे ये तासुर देना मकसूद था कि ये चिड़िया तो खुद ब खुद पिंजरे में फंस रही है। उसकी इस हरकत को तीसरी मेज पर बैठे शेरगुल खान ने नोट कर लिया था। चलिए मिस इमराना, आप वाकई बहुत स्मार्ट हैं, बहुत जबरदस्त शय हैं आप। परवीन ने उसे बेहुदा सा इशारा किया। थोड़ी देर के बाद वो लोग उस होटल की तीसरी मंजिल पर बने कमरे में मौजूद थे। उनके हॉल से बाहर निकलने पर शेरगुल अपनी मेज से इस तरह उठकर बाहर आया था जैसे उसे किसी मेहमान का इंतजार हो जो अभी तक नहीं आया और वो उसी को देखने जा रहा है। इमराना ने उसे देखकर नामहसूस अंदाज में गो उस तक ये पैगाम मुंतकिल कर दिया था कि वो अभी इस होटल में मुकीम है, लेकिन शेरगुल ने एहतियातन दूसरी लिफ्ट के जरिए उनके कमरे तक उनका पीछा किया था। फिर कमरे का नंबर पढ़कर मुतमईन होकर वापस लौट आया। सलीम ने इमराना को बड़े एहतराम से कुर्सी पर बिठाया था और दोनों उसके सामने सोफे पर बैठ गए। उन्होंने अपने लिए कॉफी कमरे ही में मंगवा ली थी। इधर उधर की चंद बातें करने के बाद सलीम ने उससे कहा, मिस इमराना, मुझे आपके ख्यालात से 100% इत्तेफाक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंसान खामखा अपनी जान जोखों में क्यों डाले। आपको कुदरत ने हुस्न की लाजवाल दौलत बख्शी है, आपके पास इससे ज्यादा मौसर हथियार कोई नहीं। इस मुल्क में कदम कदम पर आपको बेशुमार ऐसे गधे मिल जाएंगे जो आपके एक इशारे अबरू पर अपना दिल भी हथेली पर निकाल कर रखने को तैयार हो जाएंगे। आपको बस हमारे लिए उनसे राब्ता रखना होगा। देखिए मिस इमराना, हम बिजनेसमैन हैं और सरकार दरबार से हमारा काम लगा ही रहता है। कोई भी डील होगी उसमें से आपको चौथा हिस्सा मिल जाया करेगा। फिलहाल तो मेरे पास आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन यही है। वो बोली, सलीम साहब, मैं एक बात साफ साफ बता दूं कि इस बिजनेस में हमारी हैसियत एक पार्टनर की होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? उसने सलीम के दिल में अगर कोई शुबहात बाकी थे तो वो भी ये बात कहकर निकाल दिए और उन्हें उम्मीद हो गई कि वाकई ये लड़की हवस की मारी हुई है और हवस के अंधों की उनसे ज्यादा जरूरत और किसे हो सकती थी। सलीम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वेल डन मिस इमराना, आपका और हमारा साथ खूब निभेगा। हमें भी ऐसे ही दोस्त चाहिए जो बिजनेस को बिजनेस समझें। यकीनन ऐसा ही होगा जैसा आप चाहेंगी, लेकिन हम अपने दोस्तों से ये उम्मीद जरूर रखते हैं कि वो वक्त आने पर हमारा साथ दें और एक दूसरे को अकेला छोड़कर न भागें। इमराना ने दूबदू जवाब दिया,
बोली ये बात कबल अज़ वक्त है सलीम साहब, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा कि किसने किसका साथ दिया और कौन मैदान छोड़कर भागा। अभी तक उन्हें इमराना की किसी हरकत पर शक नहीं गुजरा था। सलीम तो ये सोच रहा था कि ये उसकी पहली डील नहीं बल्कि वो इस मैदान की मंझी हुई खिलाड़ी है। उसकी गुफ्तगू से कम यही अंदाजा हो रहा था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।